Hello everyone, this is the sixth video of type of relation. Today we will discuss about equivalence class. The learning outcomes are you will able to define the equivalence class and you will able to find the equivalence class of a set. First of all, we'll discuss what is an equivalence class. An equivalence relation R defined on set A partition a set A into pairwise disjoint subset means ये A सेट के आप डिफरेंट पार्टीशंस करेंगे और पार्टीशंस भी कंडीशन ये है कि दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट्स और जो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट्स हैं ये क्या बनाएंगे आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइंड बाय रिलेशन R ऑन द सेट A. नाउ सो इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन कैसे करेंगे? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A belongs to A is set of all the element of A related to A. अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? It is denoted by you will write small a in square bracket and small a in square bracket represent an equivalence class of A. ये कैसे लिखेंगे? Curly bracket start X such that X is related to A. तो इसमें अब ये भी याद रखना है कि corresponding to every element in A there is an equivalence class. ठीक है, तो इसमें equivalence class के ऊपर एक और कंडीशन आपने याद रखनी है कि जो भी कोई भी दो equivalence classes होंगी वो या तो आइडेंटिकल होंगी या वो डिसजॉइंट होंगी. रिलेशन R इन सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय R A related to B such that A minus B mod is even. Now you have to find the equivalence class of 1 2 3 4 and 5. So for equivalence class of 1, so you have to write x comma 1 such that x minus 1 is even. So you have to list down all the element which is related to 1. So 1 minus 1 is even, yes, we can write down 1. 2 minus 1, no. 3 minus 1 is even, yes. 4 minus 1, no. 5 minus 1. So equivalence class of 1 will be 1, 3 and 5. For equivalence class of 2, you will write curly bracket start x comma 2, x is related to 2 such that x minus 2 is even. So first of all we'll put 1. 1 minus 2, it is not even. 2 minus 2, yes, 0, 2 is now. 3 minus 2, it is not even. 4 minus 2, yes, it is even. And again, it is not possible. So for 3, we will write exactly like this. So equivalence class of 3 will be, it is 1, 3 and 5. And for equivalence class of 4, so set of element related to 4 will be either 2 or 4. And for equivalence class of 5, we will write only 3 elements, 1, 3 and 5. Now you see either each of these equivalence classes are identical. You see these are either identical or they are disjoint. So this is a condition on the equivalence classes. They are either identical or they are disjoint. Now you see the next question is R is a relation A is related to B such that A minus B mod is multiple of 4.
अब आपको देखो इसमें ए और बी का रिलेशन इस तरह दिया है कि दोनों का डिफरेंस करके उनका मॉडुलस निकालें तो मल्टीपल ऑफ 4 है। हमें वो एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है जो कि रिलेटेड टू 1 हो। तो 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट x सच दैट x माइनस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज रिलेटेड टू 1, x minus 1 mod is multiple of 4। अब मल्टीपल ऑफ 4 आपने लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं x माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो लैम्डा इंटीजर हो तो आपकी वैल्यूज क्या पुट हो सकती हैं, 0, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। अब यहाँ से मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे वैल्यूज कौन सी आएंगी, 0 के साथ प्लस माइनस, बट इस सेट में हमारे पास सिर्फ 0 to 12 लेने हैं तो हम नेगेटिव वैल्यू नहीं कंसिडर कर ले। तो 0, 4, 8, 12, 16 एंड सो ऑन। बिकॉज मॉडुलस है तो नेगेटिव वैल्यू, बिकॉज एलिमेंट हमने जो निकालने हैं वो इस सेट में होने चाहिए, इसी सेट से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ सकती है, 1, 5, 9, 13, 17 एंड सो ऑन। सो 1 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट हैं जो इस सेट के अंदर हैं, इट इज 1, 5 एंड 9। Now next question is equivalence relation defined on n cross n AB related with CD such that A plus D is equal to B plus C। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लास हमने किस में निकालनी है, ऑर्डर्ड पेयर में। तो मुझे इक्विवेलेंस क्लास 2, 3 ऑर्डर्ड पेयर की निकालनी होगी। तो हम कैसे लिखेंगे, तो आप इसमें ऑर्डर्ड पेयर लिखना है, लेट एक्स वाई इज रिलेटेड टू 2, 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x, अब देखिए रिलेशन कैसे बना हुआ है, ये फर्स्ट प्लस फोर्थ और यहाँ पे आ रहा है सेकंड प्लस थर्ड, फर्स्ट एंड फोर का सम और यहाँ सेकंड और थर्ड। यहाँ पे कैसे बना सकते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस 2। तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा, इसको अगर ट्रांसपोज कर दें, सो y इज इक्वल टू x प्लस 1। अब आप x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करेंगे और y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे जो कि इसके साथ रिलेटेड होंगे। तो चलिए हमने पुट कहाँ से करना है, नेचुरल नंबर से पुट करना है। तो 2, 3 के साथ हमारे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड होंगे, तो आप लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, एक, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1, 2। सेकेंड इज, अगर मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट करूं 2 तो y की वैल्यू 3, ऐसे ही 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके साथ 2, 3 से रिलेटेड होंगे। सो इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ इक्विवेलेंस क्लास में हम कौन कौन से आएंगे, 1, 2, 2, 3, 3, 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन n cross n AB related to CD। again it is ordered pair, so AD is equal to BC। अब यहाँ पे रिलेशन कैसे आपके पास डिफाइंड है, फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे सेकंड और थर्ड का प्रोडक्ट है। तो चलिए इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है हमने 2, 6 की। तो 2, 6 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x, y बी रिलेटेड टू 2, 6। सो अब ये रिलेशन में आप पुट करो, आप xy इज रिलेटेड टू 2, 6 कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज फर्स्ट और फोर्थ का प्रोडक्ट, तो 6x
इज इक्वल टू सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2y। सो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी अगर ये हम इसको कैंसिल करते हैं। सो y इज इक्वल टू 3x। तो मैं यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस निकाल रहा हूँ 2 6 से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपके पास बनेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। तो x की वैल्यू पुट करो आप। x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 1 तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3। नेक्स्ट इज 2, 6, 3, 9 and so on. These all are the ordered pair which is related to 2, 6.